Good morning. Yesterday I discussed how the constitution was formed. What was the features? How the constitution was formed? What was the constitutional assembly? How the constitutional assembly was made? How the discussion takes place in that constitutional assemblies, and after that how. Now I will not allow. आप जो भी आ रहे हैं उनको बोल दीजिए कि नहीं दिखाएं वो करेंगे. चलिए अब हम आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. Silent feature of the constitution. What is the meaning of the silent feature of the constitution? What is the meaning of feature of anything? When we go to define the features, we try to analyze the things which are here, what are their features. The first feature of our constitution, which was framed by the Constituent Assembly, is lengthiest written constitutions. Indian constitution is lengthiest written constitutions. Lengthiest written constitutions. What is the meaning of this? The meaning is Indian constitution is very lengthy. And what are the reason why the constitution is lengthy? There are the 4 points. Due to that 4 points, the Constitution of India has become lengthiest, and that points are: first, that is the geographical factors. Geographical factor means India is very vast. There are several states. There are union territory. This constitution is applicable throughout the country. The geographical point of view, India is very vast. Since we have to accommodate each and every members of every state's union territory, etc. That's why different provisions have been introduced in this constitution. That's why it become bulkiest. Second is historical factor. Second factor responsible for this historical factor. Historical factor means maximum portion of 1935 India Act 1935 Act that has been embedded in our constitution, and this act was itself the lengthiest, since our framers use cut paste techniques. They just take some points from the 1935 Act and put here. Due to that reason, it become lengthiest. Third factor is single citizen for both. Single constitution for both. Single constitution for both center as well and state. दोनों के लिए चूंकि कानून एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, चाहे वो राज्य की सरकारें हैं चाहे वो केंद्र की सरकारें हैं, दोनों के लिए एक ही कानून, एक ही संविधान बनाया गया है. और इस संविधान में अलग अलग लिस्ट बना दी गई है. दैट इज द सेंट्रल लिस्ट, दैट इज द स्टेट लिस्ट, दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट, दैट इज द रेसिडुअल लिस्ट. In central list, the matter which comes under the government of India, that comes under the central list. And what matter comes under the central list? Railway, defense, postal services, telecommunications, etc. So that departments come under the center. Under the state list, police, law and order, jail system,
Education basically it is the in concurrent list. Up to 10+2 level, the power to make the rule and regulation is in hand of the state government. And higher education, you can say the university level and college level, much power is given in hand of the center. तो चूंकि सारे देश के लिए और सारे प्रदेश और यूनियन टेरिटरी के लिए एक ही संविधान है और उन सबके पॉइंट को इसमें रखना है, इसलिए भी हमारा संविधान बहुत ज्यादा बल्कि हो गया, बहुत ज्यादा भारीपन बड़ा हो गया. And fourth factor which is responsible for the lengthiest constitution, that is the dominance of legal luminaries. Dominance of legal persons. You can say persons. What is the meaning of dominance of legal persons? If you see, most of the 60 to 70% who was present in the Constituent Assembly, they were from law background. They were advocates. तो जब अब एडवोकेट्स को इसमें रखा गया तो नेचुरली वो सारे पॉइंट को कानून के तरीके से देखने की कोशिश किए और हर एक पॉइंट पे उन्होंने अपना डिटेल रखने की कोशिश किया. इन सब कारण से भारत का जो संविधान है वो भारत का संविधान लेंथीएस्ट हो गया. So these are the four main factors responsible for the lengthiest written constitution. This is the first feature of our constitution. Second feature of the constitution is drawn from various sources. Second feature, it is drawn from various sources. Drawn from various sources. Drawn from various sources means several parts that has been taken from different countries. And it is true. And sometimes people also say, critics say that the Constitution of India is the borrowed constitution due to this feature, because if you see, most of the portion of the constitution is taken from the constitution of either Ireland, USA, Germany, France and etc. Due to these reasons, Indian constitutions is known as drawn from the various sources. And third feature, blend. Of rigidity, blend of rigidity and flexibility. Here you will see two words. There are two words. One is the rigidity and then is the flexibility. Both features is present in our constitution. And due to this reason, whenever we want, we can make rigidity, we can make rigid constitution. Whenever we want, we can make the flexibility. For example, rigidity. Example of the rigidity. Example of the rigidity is GST amendment, GST amendment bill, amendment bill, and flexibility is GST bill. Now both have become act. What is the difference between GST amendment bill and GST bill? GST amendment bills, for GST amendment bill, we need the bill should be passed by more
bill should be passed by a special majority. A special majority plus more than 50% state. More than 50% state. तो जब भारत में बार बार जीएसटी लाने की कोशिश की जा रही थी, यूपीए गवर्नमेंट ने काफी कोशिश किया, इसके बाद दिस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने भी कोशिश किया, पहले बात नहीं हो पा रही थी, काम नहीं हो पा रहा था। उसका रीजन ये था कि जीएसटी के लिए 50% से ज्यादा स्टेट को पास करने की जरूरत थी, बिकॉज इट वाज ए अमेंडमेंट बिल, इट वाज ए टफ बिल, एंड इन दैट बिल a special majority was needed plus more than 50% ratification was needed. लेकिन जब अमेंडमेंट बिल जीएसटी एक्ट बन गया, उसके बाद जीएसटी बिल लाया गया. This GST bill is passed by a simple majority and it don't require ratification by more than 50% state because it is a general bill. तो बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में चेंज करना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, हाउ द वोट इज काउंटेड, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, then it need a special majority plus more than 50% state. So this is the sign of rigidity. Why the rigidity has been introduced in our constitution? Rigidity has been introduced so that if any party come in the power, suppose in Lok Sabha and not in Rajya Sabha, or if it want to do something arbitrary, मान लीजिए अपने मनमानेपन का काम करने लगे, कोई भी चीज उल्टा सीधा करने लगे, तो इसके लिए कानून बनाया गया है कि पहले बिल को लोकसभा में या राज्यसभा में पास होना चाहिए, फिर दूसरे हाउस में पास होना चाहिए, उसके बाद बिल को 50% स्टेट से पास होना चाहिए। और इतने बड़े कंसेंसस को लाने के लिए नेचुरली आपको किसी अच्छे बिल पे ही कंसेंसस होगा। अगर आप किसी के खिलाफ बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गलत बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल गिर जाएगा पार्लियामेंट में या स्टेट्स में रेटिफाई नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द साइन ऑफ रिजिडिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मींस according to the constitution of our India, no single person, no single party is more powerful. The powerful thing is the majority. Who has majority, they can do, otherwise not. Why the flexibility has been introduced? Flexibility has been introduced so that everyday work cannot be suffered by such type political hurdles. Otherwise, government can't do anyone. अब कोई छोटा मोटा बिल लाना होता है, उस बिल को बहुत आराम से पार्लियामेंट में लोकसभा में रखा जाता है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है और वो बिल आसानी से पास हो जाता है। तो ऐसे बिल जो बहुत आसानी से 50% मेजॉरिटी से पास होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं, वो सारे बिल दैट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द flexibility, and those bill which is passed by a special majority and ratified by the 50% of the state is examples of the rigidity. So our constitution has both features. Constitution somewhere it is adopting the rigidity and constitution somewhere it is mentioned the flexibility. So this is the third feature of our constitution. Fourth feature of our constitution, federal system. Fourth features, federal systems. Federal system big system with unitary bias. With unitary bias. Unitary bias. यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी बायस।
What is the meaning of unitary and what is the meaning of the federal system? Federal system has several features. फेडरल सिस्टम को आप लेमैन तरीके में ऐसा समझिए कि जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली मेंशन हो। जैसे भारत में 3 तरह के गवर्नमेंट है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट, सेकेंड दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, एंड थर्ड municipalities oblique panchayats. अब अगर इन तीनों तरह की चुनी हुई सरकारों की पावर फिक्स कर दी जाए, एक दूसरे का बिना जरूरत का कोई हर्डल्स ना हो, कोई आपस में इंटरफेरेंस ना हो, तो ऐसे सिस्टम को फेडरल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर देखा जाए तो ज्यादा पावर है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में यूनियन के अंतर्गत सेंट्रल लिस्ट, देयर आर द 4 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, and fourth residual list. अब सेंट्रल लिस्ट में जनरली वो सब पॉइंट्स आते हैं जिसमें केंद्र मीन्स पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार होता है, लोकसभा राज्यसभा में कानून बनाए जाते हैं। स्टेट लिस्ट में वो सारे मैटर्स आते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग विधानसभाएं अपना कानून बनाती हैं। म्युनिसिपैलिटीज एज वेल एज पंचायत के अपने पावर्स होते हैं, उसमें इनको बनाने का अधिकार होता है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, आप देखिए एजुकेशन में आप देखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन हैज CBSE board and state boards. CBSE board that comes under the center, state boards that comes under the state. लेकिन जहां पे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या दोनों अगर कानून बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें सेंटर के द्वारा बनाए गए कानून की मान्यता अधिक होगी, स्टेट गवर्नमेंट के कानून की मान्यता कम होगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो आपके कॉन्करेंट लिस्ट है और जो सेंट्रल लिस्ट है, ये दोनों यूनिटरी की तरफ सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा है रेसिडुअल लिस्ट। रेसिडुअल लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जो ना तो सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है, ना स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ना आपके किसी कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे अभी रिसेंटली कोविड-19 या नेचुरल कैलेमिटीज। अब नेचुरल कैलेमिटीज में आपने देखा कि प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद रात में 12 बजे से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखिए, द रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैज बिकम नील, द रोल ऑफ द स्टेट लोकल अथॉरिटी दैट हैज बीन नील। तो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट सेंटर supersede the power of all. When the center supersede the power of all, that is a sign of unitary. इसी तरह दो और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यूपीएससी। आप ऑल इंडिया देखिए, ऑल इंडिया 3 तरह की सर्विसेज हैं, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। यूपीएससी से जो सेलेक्ट होते हैं उनको 2 तरह की जॉब मिलते हैं। वन जॉब दैट इज
all India services, all India services, or and all India services and central services, central services. There are only 3 posts for all India services, that is IAS, IAS, IPS and Indian Foreign Services, Forest Services, ध्यान रखिएगा, Foreign Services नहीं, because Indian Foreign Services comes under the central list. ये तो 3 सर्विसेज में आपको जो लिख रहा हूं, IAS, IPS और IFS, these services are known as the central services. और आप जानते हो कि सारे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा अगर ताकतवर कोई होता है तो ये 3 ऑफिसर होते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं. They are recruited by the UPSC, they are appointed by the center, but they are handled by the state. इसीलिए after the selection and if you get a good marks, then cadre is allotted. And when you get a cadre, suppose anybody get the cadre of UP या बिहार, पंजाब, हरियाणा, तो generally 60 to 75% job you have to do in that particular state. You can go on the deputation at the central services for 5 years or if government extended. और आपको पता होना चाहिए कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी IAS ऑफिसर होता है, और पूरे प्रदेश की कमांड कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत आती है. चीफ मिनिस्टर इज द इलेक्टेड मेंबर्स, ही कैन इंस्ट्रक्ट द चीफ सेक्रेटरी, बट ऑर्डर पास नहीं कर सकता है. वो उसको ट्रांसफर कर सकता है, उसको हटवा सकता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर पास होंगे वो सारे ऑर्डर IAS ऑफिसर के कलम से ही पास होना है. तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए कि स्टेट को भी इन IAS ऑफिसर्स पे डिपेंड होना पड़ता है. दूसरा सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज में आपके डिफेंस सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज एंड सो ऑन, ये सारे सेंट्रल सर्विसेज हैं. अब स्टेट PSC में देखिए, स्टेट PSC में मान लो APPCS में हम लेंगे APCS, अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज, APPS, अरुणाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज, CDPO and etc. These vacancies may change time to time. Sometimes the vacancy of the APCS is more, sometimes APPCS is more and so on. अब देखिए यहाँ पे सेंटर और स्टेट में भी अगर आप देखेंगे तो एक जो IAS बनेगा वो 5 साल में DC बन जाएगा, और जो कोई PCS से आएगा, जो APPCS से आएगा या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर के आएगा, उसे IAS कैडर जाने में कम से कम 15 से 20 साल लगेगा. और इतना ही नहीं, उसको DC बनने में लास्ट में रिटायरमेंट के समय जाकर के 25 to 30 ईयर एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस के बाद वो जाकर के DC बनेगा या जाकर के सेक्रेटरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट बनेगा. जबकि वहीं पे IAS ऑफिसर 5 साल के अंदर सेक्रेटरी बन जाएगा या 5 साल के अंदर DC बन जाएगा. इसी तरह IPS में अगर हम लेते हैं तो जो IPS सेलेक्ट होकर के आएगा वो 4 to 5 ईयर में सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस बन जाएगा. जबकि स्टेट का जो APCS है, APPS है, इसे सुपरिंटेंडेंट बनने में कम से कम 15 से 20 साल लगेगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस. तो इसकी मैक्सिमम रीच कहां तक पहुंचेगी? नेचुरली IAS, this UPSC selected student is dominating on the state public states selected pupils, and these pupils works under the UPSC. This is the example of unitary. Although we say that there is a federal system, power is distributed, but you can visualize from these examples that power knowingly or unknowingly that is inclined toward the center. Another example of the unitary feature, that is the judiciary systems in India. You know that there is one Supreme Court, and under Supreme Court there are several high courts, and the
chief governing body of judiciary is the Supreme Court, and under high courts there are the district courts. District court. अब देखिए, कोई भी केस, नॉर्मल केस, अगर फंडामेंटल राइट नहीं है या कोई स्पेशल प्रोविजन उसमें छिपा हुआ नहीं है, तो कोई भी केस पिटिशनर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फाइल करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स और एक सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट वो मैटर्स होते हैं जिसमें दो लोग पार्टी होते हैं। मान लीजिए किसी के बीच में आपस में देयर इज सम लैंड डिस्प्यूट, देयर आर सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड एक्सेट्रा, तो देयर विल बी टू बॉडीज, दैट मैटर गोज इन द सिविल कोर्ट और उसको सिविल जज बोलते हैं। और जो क्रिमिनल केस होता है जिसमें एक पार्टी पुलिस होती है, एक पार्टी कोई और होता है। मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, अब जिसका मर्डर हो गया उसके परिवार की तरफ से पुलिस लड़ेगी, उसका सारा एविडेंस इकट्ठा करने का काम पुलिस के हाथ में है। तो ये जो काम, एक पार्टी पुलिस बन जाती है, सारा गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस वहां पे लगते हैं, दैट आर द क्रिमिनल केस। और जो जज क्रिमिनल केस को देखते हैं उनको हम मजिस्ट्रेट बोलते हैं। जो जज सिविल कोर्ट को देखते हैं उनको हम नॉर्मल जज बोलते हैं या दीवानी मैटर्स देखते हैं। अब यहां पे भी देखिए कि अगर कोई भी डिसीजन इस लोअर कोर्ट में हुआ, सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल केस में, दिस मैटर गोज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी दिस गोज टू हाई कोर्ट। और अगर इसने कोई डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को पलट दिया, फिर इसके बाद प्रोविजन होता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिसीजन को एज यूजुअल रखा, देन वेल एंड गुड। इफ सपोज सुप्रीम कोर्ट हैज रिवर्स द decision of high court, then ultimately decision of the supreme court is implemented, not the order of the district court or the high court. आप यहां भी देख सकते हैं कि कहने को तो जुडिशरी इस तरह से सिस्टमेटिक है, लेकिन जब कोई पैसा वाला होता है या जब कोई अप्रोच वाला होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके अगर सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट कर ले तो नीचे के जितने भी जजमेंट हैं, भले वो 100% सही रहे हों, उस सब के सब नल एंड वाइड हो जाते हैं। आपका सीधा सीधा उदाहरण आपके सामने है। एपीपीसीएस के मैटर में 2017 का जो एग्जाम था, मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल गोज इन द दैट गोज इनटू द ईटानगर ब्रांच बेंच, हाई कोर्ट। पहले उसने डिसीजन दिया, उस डिसीजन के बाद डबल बेंच ने कोई डिसीजन दिया, उस डबल बेंच को फिर पलट करके फिर डिसीजन आया, फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट की मल्टीपल बेंच डबल बेंच ने उसको दिया, फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में 3 बेंच मेंबर्स ने डिसीजन दिया। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो जो अल्टीमेट पावर है वो शिफ्ट हो जाती है सेंटर पे, दैट इज अ साइन ऑफ यूनिटरी। There are several examples present in our constitutions which shows that the Indian constitution is federal as well as the unitary. But several experts, several constitutional experts has given the opinion that it is inclined more toward the center. अब मिलिट्री ले लीजिए, मिलिट्री सेंटर के पास मिलिट्री है, सेंटर के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस है। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के पास केवल स्टेट पुलिस है, ज्यादा से ज्यादा होम गार्ड्स हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट बगावत करती है, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर हैज पावर टू इंपोज द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, इट ओवरटेक द पावर ऑफ द पुलिस एक्सेट्रा। तो less or more you will see that more and more power is given in hand of the center. लेकिन एक जगह आप ध्यान रखिएगा, लैंड के माने में, लैंड मैटर, इन द केस ऑफ द लैंड मैटर्स, स्टेट इज मोर पावरफुल देन द सेंटर। अगर स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके नहीं देती है तो ना तो रेलवे ट्रैक बन पाएगा, ना एयरपोर्ट बन पाएगा,
कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस द टर्म्स ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बट वो कहने को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, एक्चुअल नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंटर का काम है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉपरली कोऑपरेट करे, उनकी जो भी नीड है उस नीड को फुलफिल करे, और उस नीड को के लिए अगर पैसे की जरूरत है तो पैसे दे, रिसोर्सेज की जरूरत है तो रिसोर्सेज दे, टेक्नोलॉजी की जरूरत है टेक्नोलॉजी दे। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के रूल्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, क्योंकि सेंटर के पास बहुत वर्क फोर्स नहीं है। हार्डली 40 से 45 या 50 मिनिस्ट्रीज हैं। एक मिनिस्ट्रीज में हार्डली 100 से 200 एम्प्लॉय होते हैं, और उनकी स्कीम्स को पूरे देश में लागू करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स को होता है, ना कि सेंटर। सेंटर कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास पब्लिक ही नहीं है, उसके पास एम्प्लॉयज नहीं है। तो अगर सेंटर कोई भी कानून बनाता है, then it is the responsibility and it is the duty of the state government that it must be implemented according to the federal cooperative federalism। लेकिन आप देखते हैं अभी कल भी घटना घटित हुई है, राजस्थान की गवर्नमेंट को गिराने की पूरी तरह कोशिश हो रही है। आपके अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को भी दूसरी तरह से डिस्टेबलाइज करके दूसरी गवर्नमेंट बनाई गई। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां सेंटर अपना काम छोड़ करके दूसरा काम कर रही है। अभी कोविड को हैंडल करना है, अभी आपके चाइना इश्यूज को हैंडल करने हैं, इकोनॉमी खत्म हो गई है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो सेंट्रल की फीचर्स है। Another feature of our constitution, that is the fifth feature, parliamentary system। Parliamentary system, this parliamentary system is adopted from Britain, and in this parliamentary system, if you see, parliament that is consist of three parts. First and foremost is president। अगर एग्जाम में कभी भी आता है कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट। सेकेंड इज द स्टेट राज्यसभा, एंड थर्ड इज लोकसभा। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्लियामेंट में कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर आप यहां देखें, प्रेसिडेंट हैज मच रोल because if any bill is passed by the Lok Sabha or Raj Sabha and it go for the assent of the president, and if the president refuse to give the assent, then that bill can never become the act। तो देखने में तो लगता है कि प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट एक्चुअल ऐसा नहीं है। क्यों? अब राज्यसभा के बारे में भी देख लीजिए। राज्यसभा एक ऐसा हाउस है which can never be dissolved and every member is elected for 6 years and after 2 years 1/3 member is retired। अब 1/3 रिटायर होंगे, फिर इसमें आते रहेंगे, फिर इसका होता। और राज्यसभा का जो हेड होता है, द हेड ऑफ द राज्यसभा, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो आप देखिए प्रेसिडेंट भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट भी इंक्लूड हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप देखते हो तो सरकार बनती और बिगड़ती कहां से है? राज्यसभा से सरकार कभी नहीं बनती है, राष्ट्रपति से भी कुछ नहीं होता है। राष्ट्रपति चाहे कितना भी एक्टिव हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द नॉमिनल हेड, इट इज नॉट एक्चुअल हेड। Actual things happen by the Lok Sabha, which normal tenure is the 5 years, and the people are directly elected by the Lok Sabha। आप राज्यसभा में भी देखेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में देखेंगे,
यहाँ पे लोग जिसे पीपुल ऑफ इंडिया बोलते हैं, कॉमन पीपुल पार्टिसिपेट नहीं करता है। राज्यसभा के लिए केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट असेंबलीज में, मींस एमएलएज एंड एमएलसी, दे पार्टिसिपेट in election of the president, elected members of the elected member of the Lok Sabha, elected member of the Rajya Sabha, then state assemblies etc. लेकिन लोकसभा देखिए, लोकसभा, भारत की लोकसभा में आज के दिन में 545 मेंबर्स हैं। इस 545 मेंबर्स में 273 required for majority. Those party or those group or those alliance which obtain this figure 273. That party is capable to form the government. और जो गवर्नमेंट बनने और बिगड़ने का खेल है वो यहीं से होता है। ये दोनों केवल दिखाने के लिए ताकतवर हैं। कहने का तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, प्रेसिडेंट अपना हमेशा बैठा रहता है, प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस होते रहते हैं। लेकिन ये लोकसभा जो है, लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो एवरी 5 इयर्स के बाद होता रहता है, और उस 5 ईयर आफ्टर एवरी 5 इयर्स तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं। जो राज्यसभा के मेंबर हैं, दोनों एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कम ताकतवर हैं, क्योंकि सरकार गिरने और बनने का जो काम होता है वो केवल लोकसभा के मेंबर से होता है। इसीलिए देखेंगे जब कैबिनेट बनाई जाती है तो उस कैबिनेट में लोकसभा के लोगों को ज्यादा रखा जाता है, राज्यसभा के लोगों को कम रखा जाता है। ये अलग बात है, अभी की गवर्नमेंट में राज्यसभा के लोग ज्यादा, आपके सरकार में थावरचंद गहलोत, रेलवे मिनिस्टर्स, सीतारमैया, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं। लेकिन मंत्री बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का। Even though if a person is not a member of Lok Sabha and Rajya Sabha, again he can become the minister, again he can become the prime minister. Only the condition is that he must be elected within 6 months. अगर कोई भी राष्ट्रपति चाहे तो ऐसे इंसान को भी प्रधानमंत्री बना सकता है जिसके पास एक मेंबर भी नहीं है, और उसको शपथ दिला सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो हो सकता है ना, आफ्टर within the 6 months he can be elected. हो सकता है बहुत पॉपुलर हो, इलेक्शन नहीं लड़ा हो और ऐसी नौबत आ जाए उसी को बनाना है, तो ऐसे सिचुएशंस में बनाए जा सकते हैं। तो भारत का जो सिस्टम है, द फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसी तरह की स्टेट गवर्नमेंट्स में भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी एट द प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट देयर इज द गवर्नर। गवर्नर इज द नॉमिनल हेड। एट द प्लेस ऑफ द राज्यसभा देयर इज post of MLC, member of legislative councils, but सारे states में legislative councils नहीं है। I think at present it is only in 8 states, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर etc. तो जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे 2 सदन है, वहाँ पे हमारे MLCs, member of legislative councils and MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इस तरह से हमारे संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया गया है, और उस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आपके लोकसभा सेंटर और स्टेट में सरकार चलाई जाती है। Another feature of our constitution is fundamental rights. Fundamental rights. And it is very tough question. If anybody asks what is the fundamental right, to define the fundamental right in a single words is not very easy task. It is very tough. Because in our constitution, under the several articles, the provision of the fundamental rights has been given. लेकिन उसकी definition properly नहीं दी गई. In layman language, you can say
that fundamental rights are those rights which are given to the citizen as well as the alien. Alien means वो विदेशी जो भारत की टेरिटरी में आज के दिन में रह रहे हैं, उनको भी राइट दिया गया है। तो उनकी लाइफ के लिए जो राइट्स दिए गए हैं, दैट राइट्स आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स। तो ये भारत के संविधान में क्लियरली मेंशन है कि अंडर आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 18 क्या है, 16 क्या है, 14 क्या है, 13 क्या है, 12 क्या है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो there are several rights which are given especially to the citizen of India, and there are certain rights which is given to everyone existing in the country, only those who are not enemy members। मान लीजिए कोई भी ऐसे कंट्री से आया हुआ है और ऐसा एलियन है जो एनिमी एलियन है, जहां से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, और यहाँ आने के बाद भी वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, टेररिज्म में इन्वॉल्व है, कोई यहाँ के मैटर्स को लीक करता है, कुछ और ऐसे काम करता है, तो ऐसे लोगों के राइट्स को कर्टेल किया जाता है। वैसे भी फंडामेंटल राइट कोई सैक्रोसेंट नहीं है कि कभी चेंज नहीं हो सकता या कभी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता। You can see there are several reasonable restrictions have been imposed on the fundamental right at different articles। तो भारत के संविधान की ये भी विशेषता है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट भी मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अब यहाँ पे दो चीज आपको जानने की बहुत जरूरी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में अंतर क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इफ इट इज वायलेटेड, कंसर्न पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टुक इट इमीडिएटली। इसके लिए डेट पे डेट नहीं लगता है। अगर उसको लगता है कि दिस इज अ मैटर ऑफ द कंसर्निंग विद द फंडामेंटल राइट्स, दैट इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, उस कोर्ट्स में उसकी हियरिंग करके इमीडिएट इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट की मीनिंग ही है कि ऐसा राइट जो लोगों के जीवन के लिए चाहिए, बेसिक्स नीड के लिए चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही सरकार बनाई जाती है। जो इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस का मेन मोटो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट मेक प्लान्स, स्कीम्स एक्सेट्रा, एंड दैट प्लान्स, स्कीम्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट मशीनरी और सेंट्रल मशीनरी एंड व्हाटएवर बी। तो गवर्नमेंट का गठन का पर्पज ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होता है कि सब जगह शिक्षा अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 के समय में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज देखने को मिली दैट इज द हेल्थ सेक्टर। और आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ने हेल्थ पे पैसा बहुत कम खर्च किया है, या खर्च किया है तो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ठीक तरीके से बने नहीं है, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशंस नहीं है, प्रॉपर बेड्स नहीं है, कोरोना को हैंडल करने के लिए वेंटिलेटर्स नहीं है, हाइजेनिक एनवायरनमेंट नहीं है। ये सब काम करने का अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। रोड बनाने का काम, पानी का काम, बिजली का काम, शिक्षा का काम, हेल्थ का यानी हॉस्पिटल का काम, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। अब अंतर केवल इस बात का है कि इफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, नोबडी कैन मूव इन द कोर्ट। ऐसा क्यों? ये भी तो सोचिए। इसका रीजन है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि हमारे घर के सामने कंक्रीट का रोड होना चाहिए, हर एक आदमी कहेगा हमारे घर के सामने नल होना चाहिए, हर एक आदमी कहेगा हमारे घर के बगल में स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए। सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है, बिकॉज द मनी विच कम्स गवर्नमेंट्स विच गेट गवर्नमेंट, दैट इज ओनली द
दैट इज द टैक्स। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट जैसी पावर नहीं दी गई है जिससे कि सरकार इसको धीरे धीरे करे। लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है। मिसयूज ये हो रहा है कि सरकार कहने का तो प्लान बनाती है, स्कीम्स बनाती है, फंड भी रिलीज होता है और फंड रिलीज होने के बाद वो फंड सही जगह पे जाता नहीं है, उसका इवेल्युएशन नहीं होता है, उसके सर्वे सही नहीं होता है और सब जगह मिली भगत है। उसके कारण पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का पैसा या सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा पूरा का पूरा बीच के मीडिएटर मींस ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज द पॉलिटिशियन एंड सम मीडिएटर्स, ये सब मिल बांट के खा लेते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की मेरी समझ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड प्रॉब्लम है। ईटानगर से नाहरलगुन के बीच में रोड अभी तक नहीं बन पाया। नियर अबाउट 2 years इज गोइंग टू कंप्लीट। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज विल पावर। रीजन इज, हाँ कुछ फैक्टर्स भी हो सकता है कि रेन एक दैट इज ए बिग प्रॉब्लम, लेकिन केवल रेन ही नहीं है, उसके बीच में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम सरकार की तरफ से भी होती है, सरकार कभी भी किसी प्रोजेक्ट के लिए टाइमली फंड रिलीज नहीं करती है। इसमें केवल कॉन्ट्रैक्टर को ही नहीं हम ब्लेम कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत काम किया हूँ और कर रहा हूँ, हमें पता है कि कहीं भी जब पैसा रिलीज करने को होता है तो वो पैसा कभी भी टाइम से नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री सिविल सर्विसेज योजना 1.5 साल से लटकी पड़ी है, मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ, गवर्नमेंट के सबसे मिल रहा हूँ, लेकिन वो पैसा नहीं रिलीज हो रहा है, बहानेबाजियां चल रही हैं, ये सब होता है। There is fundamental duties and there is fundamental duties. Fundamental duties. Although this fundamental duties was not added in our original constitution, but its need is felt during the emergency and after the emergency, during the emergency, and in that time Srimati Indira Gandhi introduced fundamental duties by 42nd Amendment Act. Another feature of the constitution is universal adult franchise. Universal adult franchise. What is the meaning of universal adult franchise? एडल्ट की डिफिनेशन पहले तो समझ लीजिए। पहले भारत में वोटिंग राइट दैट वाज 21 ईयर, कि ऐसे मेल और फीमेल जिनकी उम्र 21 साल है वही लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। इसके पहले उनको एडल्ट नहीं माना जाता था। लेकिन 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इस एज को कम करके 18 इयर्स कर दिया गया और उनका लॉजिक था कि जब 18 इयर्स में गर्ल्स को मैरिज का अधिकार दिया जा सकता है एंड इट इज एज्यूम दैट दे आर मैच्योर, व्हाई नॉट मेल्स एंड व्हाई नॉट ऑल। तो आज के डेट में 18 साल ये एडल्ट की डिफिनेशन इलेक्शन के लिए है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि अभी भी जहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मैटर आता है, जहाँ पे डिपेंडेंसी का मैटर आता है, वहाँ पे एडल्ट की डिफिनेशन 21 है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपकी एज 18 है या 17 है या 19 है, सपोज 19 है, तो अभी अप टू द एज ऑफ 21 आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर उनको कोई भी मान लीजिए गवर्नमेंट पास, रेलवे पास मिल रहा है या गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, तो अप टू द एज ऑफ 21 यू आर ऑथराइज्ड टू ऑब्टेन दीज फैसिलिटीज।
लेकिन आफ्टर 21 यू विल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली एबल टू अवेल दैट फैसिलिटीज। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, what is the meaning of single citizenship? There are two types of the citizenship, one is single and another is the dual citizenship। USA में आप देखेंगे USA has double citizenship, means one citizenship of the United States of America and another citizenship is the citizenship of particular state। Suppose you take Columbia, Washington DC, कैलिफोर्निया, इसेट्रा। तो आपका जो वहां पे कार्ड बनेगा उस कार्ड में दोनों लिखा रहता है he is the citizen of USA and he is the citizen of this particular state। भारत में इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान क्यों किया गया? इसके पीछे केवल एक कारण था कि भारत के लोगों को यूनाइट करना। अगर डबल सिटीजनशिप का प्रावधान कर दिया जाएगा तो लोगों में नेचुरली एक आपस में बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, लोग स्टेट वाइज देखने की कोशिश करेंगे, जबकि भारत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देयर इज ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप दैट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया। और जो भी आपका आधार कार्ड बनता है, जो आपका एड्रेस प्रूफ बनता है, वोटर आईडी बनता है, जो भी ऐसी चीजें आप देखो उसमें भारत सरकार लिखा रहता है, उसमें किसी स्टेट का नहीं लिखा रहता है। तो ऐसी चीजें, ये इसके पीछे कोई फिलॉसफी यही थी कि अंग्रेज कहते थे कि भारत के लोग यूनाइट नहीं हो सकते हैं, वो अपने प्रोग्रेस का काम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब सिटीजनशिप की बात आई टू ब्रिंग unity among all citizens of the country, which is not biased by the state, which is not biased by the religion, which is not biased by the casteism, etc. तो there is a single citizenship। चाहे भारत में हिंदू है उसको भी वही सिटीजनशिप है, मुस्लिम है वही है, क्रिश्चियन है वही है, सबको एक ही तरह की सिटीजनशिप दी गई है। तो इस तरह से जो भारत का फीचर्स है, these are the first features, and one another feature is three-tier system। three-tier system का मतलब क्या है? three-tier system। this three-tier system means आप देखते हैं पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, उन पंचायत के इलेक्शंस में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनाव होता है, एक विलेज लेवल पे चुनाव होता है और एक उसके बीच में इंटरमीडिएटरीज लेवल पे होता है। लेकिन इसके साथ रिस्ट्रिक्शन ये लगाया गया है कि three-tier system should be adopted in those states which have population more than 20,000। अब बहुत सरप्राइजिंगली है कि जब 1913 में अरुणाचल प्रदेश में म्युनिसिपैलिटीज एज वेल एज द पंचायत के इलेक्शंस हुए, दोज पंचायत इलेक्शंस आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री-टायर सिस्टम। ये एक बहुत सरप्राइजिंगली चीज है कि कैसे हुआ, लोग कैसे किए। ऑल्दो द पॉपुलेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इज बिलो द 20,000, you will see the present government has not conducted municipal corporation elections as well as the panchayat elections. Although it do a good work, it converted three-tier system into two-tier system. But क्या hurdles है, क्यों नहीं elections हो रहा है, वो वहाँ के politician बताएंगे। क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर काम नहीं करता है, इसका मतलब that is a sign of the failure of the constitutional machinery। अब आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अरुणाचल प्रदेश में आपका पासीघाट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। यहाँ पे काम करने का अधिकार वहाँ की चुनी हुई सरकारों पे है, मतलब जो इसमें इलेक्ट होकर के आते हैं।
But when there is no such type of the bodies, then all power is that it automatically goes in hand of the DC. So DC has become much more powerful because DC is the head of this. And one system is totally closed. Panchayat system is totally closed. It is not good for the democracy. The point which we mentioned, these points concerning with our constitution. One other point which is left, that is emergency provisions. Emergency. As you see, name is clear, emergency means it is not a normal provision. Normal provisions में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है, अपने परव्यू में रह करके काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी लिमिट में रह करके काम करती है, म्युनिसिपैलिटीज अपनी लिमिट में रह करके काम करती हैं, सबका एक jurisdiction है, that jurisdiction is well defined. Nobody can encroach the jurisdiction of one to another. If they try to do this, conflict started. अब यहाँ पे ये जो प्रोविजंस दिया है, इमरजेंसी प्रोविजन 3 टाइप्स में भारत में मेंशन है. अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट रूल. President rule under Article 356 and financial emergency. Financial emergency. This emergency is declared on some criteria. Criteria is that when there is external aggression, अगर कोई दूसरा कंट्री भारत के ऊपर अटैक कर दे या भारत के कुछ पार्ट पे अटैक कर दे, पूरे भारत पे या कुछ पार्ट पे, जैसे अभी आपने देखा था कि चाइना की सिचुएशन हो रही थी, चाइना आपकी दिक्कत कर रहा था. अगर मान लीजिए वार सिचुएशन बनती और वार सिचुएशन में सेंटर के पास पावर है कि इट कैन इम्पोज द नेशनल इमरजेंसी. व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड, व्हाट हैपेंड? During the national emergency, all power that automatically transfer to the center. State government में आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं, लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर की बात को नहीं सुनेगा. अब वो केवल गवर्नर को रिपोर्ट करेगा, और गवर्नर किसको रिपोर्ट करेगा? वो सेंटर को रिपोर्ट करेगा. स्टेट असेंबली ऐसे के ऐसे बने रहेंगे, लेकिन स्टेट असेंबलीज हैज नॉट पावर टू मेक एनी रूल एंड रेगुलेशन. इफ देयर इज एनी नीड, पार्लियामेंट कैन पास दैट. और भारत में आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसीज लग चुकी है. प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है? इसमें गवर्नर्स को सारी पावर मिल जाती है. और भारत में this president rule has been misused several times, not once, several times. जब भी सेंटर स्टेट को अनस्टेबलाइज करना चाहता है तो प्रेसिडेंट रूल लगा देता है. लेकिन अब ऐसा बॉम्बे केस में ऐसा वर्डिक्ट आ चुका है जो कि साफ साफ कहता है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट रूल को एक निश्चित लिमिट में, निश्चित टाइम में उस प्रेसिडेंट रूल को लोकसभा के टेबल पे पास होना चाहिए, राज्यसभा के टेबल पे पास होना चाहिए, जिसके कारण अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं. अब आर्बिट्ररी तरीके से प्रेसिडेंट रूल नहीं लग रहा है. और आप देखिए, एक समय था उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया. अरुणाचल प्रदेश में लगा दिया गया, क्वेश्चन किया गया. इन दोनों इंसिडेंट के बाद इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल हैज मिनिमाइज्ड. Third, that is the financial emergency. Luckily, it has never declared in our country. अभी कोरोना के समय में ऐसा लग रहा था कि शायद
सेंट्रल इस चीज को डिक्लेयर कर दे, लेकिन एनी हाउ गवर्नमेंट मैनेज्ड इट, इट डोंट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। व्हाट हैपेन इन द फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी में गवर्नमेंट को ये रूल बनाने का अधिकार मिल जाता है कि किस एम्प्लॉय को कितना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, केवल कुछ पोस्ट को छोड़ करके, और हर एक खर्च को कम किया जा सकता है, स्कीम्स को रोका जा सकता है, स्कीम को खत्म किया जा सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज को कम किया जा सकता है, और जितने भी पर्क्स हैं उनको कम किया जा सकता है। तो भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट को मैंने अभी तक डिस्कस किया। दीज आर द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आशा करते हैं कि आपको इन सब चीजों की मीनिंग समझ में आई होगी, और कैसे कमीशन कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहले और आपके क्वेश्चन में अंतर क्या है? पहले क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता था कि 4 पॉइंट दे देता था, उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब संभावना ये है कि एक ही क्वेश्चन में वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से पॉइंट्स लिखेगा, फिर आंसर लिखेगा A 1 and 3 करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, 2 and 4 करेक्ट, ओनली 4 करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन की से क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन से जो भी स्टूडेंट है उसका दिमाग घूमेगा, क्योंकि वन लाइनर को तो बहुत आसानी से कोई भी टैकल कर लेता है, थोड़ा सा भी पढ़ाई किया है। लेकिन जहां पे इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, सम पॉइंट इज फ्रॉम दिस टॉपिक एंड सम पॉइंट इज फ्रॉम अदर टॉपिक्स, वहां पे आप तभी हैंडल कर पाएंगे when you have in-depth knowledge, when you have read the books and you have listened the lecture carefully, you have discussed the important points। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कीजिए, देयर इज वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट another chapter, that is the preamble of India, preamble of the constitution। Again this is a big question in sense कि if anybody asks what is the preamble, then very difficult to define it, but in layman language we can say preamble is the content of any book। जैसे कोई भी किताब लिखी जाती है तो किताब में अलग अलग चैप्टर्स लिखे जाते हैं, वो सब चैप्टर लिखने के बाद उसका एक कंटेंट लिखा जाता है और उसमें सारी चीज को समराइज किया जाता है, उसके बाद उसका थीम लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ भी हुआ कि जब भारत का संविधान बन गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के पास चला गया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करके उसको ड्राफ्ट करना शुरू किया। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 इज द डिफिनेशन ऑफ स्टेट एंड स्टेट, चैप्टर 2 सिटीजनशिप, चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट, चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड एक्सेट्रा। तो जब सारी चीज की ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गई 1, 2, 3, 4, 5 और सारा चीज तैयार होने के बाद सबसे लास्ट में प्रेम्बल लिखा गया। प्रेम्बल वैसे ही है जैसे किसी भी बुक का प्रीफेस होता है। प्रीफेस में ऑथर लिखता है कि हमारा मकसद क्या है इस बुक को लिखने का। वो लिखेगा कि आई हैव रिटन दिस बुक टू कीप इन माइंड द एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर and I have divided the whole book in several parts, that parts are this and the intention is this and so on। फिर उसमें वो सारा चीज लिखेगा। इसी तरह जो प्रेम्बल था, प्रेम्बल सबसे बाद में जोड़ा गया और कभी कभी इस पे कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, मैटर भी कोर्ट में कई बार गया कि इज द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सम क्रिटिक्स टेल्स सिंस इट इज एडेड इन लास्ट, it is not mentioned in any chapter, it is not part of the constitution। but आज के डेट में स्टेटस है कि प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके कोई भी पॉइंट को अगर अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर्स भी आ गया है, लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है
कि nobody can amend in such a extent that it can destroy the basic feature of the constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद था, जो बेसिक फीचर थी, वो फीचर किसी भी कीमत पे खत्म नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रेमबिल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो अभी हम आपको प्रेमबिल के कुछ वर्ड्स लिखने जा रहे हैं और उसके बाद उनकी मीनिंग्स एक्सप्लेन करेंगे एंड देन प्रेमबिल में क्या है, बी द people of India, be the people of India solemnly adopted, having solemnly adopted or resolved, adopted or of the resolved to constitution into a sovereign secular, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens क्या क्या चीज सिक्योर करना है, जस्टिस टू ऑल इट्स सिटीजन्स, जस्टिस जस्टिस किस तरह का है, जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, and political. Just social, economic and political. Liberty. लिबर्टी किस चीज की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, इकोनॉमिक, faith and beliefs, faith and beliefs, faith and beliefs. लिबर्टी के बाद एक टर्म्स आता है, आफ्टर दैट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, एक्सेट्रा, अपॉर्चुनिटी, एक्सेट्रा,
and fraternity. Fraternity. This word is important. Fraternity, assuring the dignity of individual. Assuring the dignity of individual and so on. In our constitution, in our constituent assembly, this 26th day of November, this 26th day of November, 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves the constitution, and give to ourselves constitution. ये जितने पॉइंट हमने आपको लिखा, दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इस प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे एवरी पॉइंट्स पे की मीनिंग है. अब उन मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मीनिंग ये है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो सेंटेंस आर रिटन एज सॉवरेन. What is the meaning of sovereign? What is the meaning of socialist? What is the meaning of secular? Democratic and republic. एक एक मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए. सॉवरेन का मतलब है कि भारत में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय नीदर बाय एनी अदर कंट्री नॉर बाय एनी अदर ग्रुप्स. सॉवरेनिटी का मतलब यही है कि आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, किसी के दबाव में आकर के डिसीजन नहीं लिया जाए. और अगर किसी के दबाव में आकर डिसीजन लेते हैं, इसका मीनिंग है कि सॉवरेनिटी नहीं है. सोशलिस्ट का मतलब है कि भारत में गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तो गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके बीच में गैप्स हैं, उस गैप्स को मिनिमाइज किया जाए. दैट इज द सोशलिस्ट अप्रोच. सेकुलरिज्म मीन्स गवर्नमेंट हैज नो रिलीजन. Government has duty to respect all religious persons. It cannot promote a particular religion. Democratic, to the people, by the people and for the people. कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता में से चुना जाना चाहिए जो भी नेता होना चाहिए. इसीलिए जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जनरली लोकसभा का मेंबर होना ज्यादा उचित है, राज्यसभा का नहीं. क्योंकि अगर लोकसभा का मेंबर होगा तो जनता के द्वारा चुन करके आया, इसका मतलब उसे जनता चाहती है.
रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द कंट्री दे मस्ट बी इलेक्टेड, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए। ये आपका जो है जैसे पहले राजा का बेटा राजा होता था, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं, जस्टिस, सिटीजन को जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक तौर पे सबको बराबर मिलना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, पॉलिटिकली होनी चाहिए, और लिबर्टी भी मिलनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रेटर्निटी होनी चाहिए हर एक आदमी में। कोई किसी भी स्टेट का हो, कोई किसी भी सिटी का हो, कोई किसी भी विलेज का हो, सब में एक आपस में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो ये आज मैंने 2 चैप्टर डिस्कस किया। पहला चैप्टर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड चैप्टर दैट इज द प्रेम्बल। अब आप लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप क्वेरीज कर सकते हैं। Is there any queries? Yes, sir. हाँ बताइए। सोशलिस्ट का मतलब है कि समाज में जो गरीब तबका है और जो अमीर तबका है, उनके बीच का जो गैप है उसको कम से कम किया जाए। सोशलिस्ट में कई चीजें आती हैं, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मीनिंग उसमें हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए। ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो नीचे के तबके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। इसीलिए सरकार होती है। सरकार, अमीर तो अपना काम खुद कर सकता है, लेकिन गरीब के पास पैसे नहीं है, गरीब के पास रिसोर्सेज नहीं है। गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है, और गवर्नमेंट का मेन मोटो भी यही होता है, टू ब्रिंग such type of the schemes, to make such type of the policy which give more and more benefit to the downtrodden people। लेकिन लोग इसका मिसयूज करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट की सरकार थी, उसने सोशलिज्म के नाम पे खूब एक्सप्लॉइट किया लोगों को। कहने को तो उनके लिए करते थे, लेकिन उनको कभी कुछ मिला नहीं। तो इस तरह से सोशलिज्म सही तरीके से भारत में इंप्लीमेंटेड नहीं है। और कोई क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को क्वेश्चन पूछना है या मैं स्टार्ट करूं? कोई क्वेश्चन है? हाँ, आवाज हमारी लैगिंग है, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं दिख रहा है, या देर हम बोलते हैं तो वॉइस थोड़ा देर से जा रही है। उसके लिए आप डोंट वरी, आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। अभी आप समझ लीजिए, दूसरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? उस वीडियो में आपको ना तो कोई वॉइस प्रॉब्लम आएगी, ना आपको कोई वीडियो की प्रॉब्लम्स आएगी। तो उसका सलूशन दूसरा मैंने निकाल दिया है। और कोई क्वेश्चन? एनी मोर? या हाँ, बिल्कुल कनेक्शन है। बेसिकली प्रीएम्बल जो है वो देखा जाए तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू में रखा था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मकसद था, जो पॉइंट उसमें मेंशन किए गए थे, वही चीज प्रीएम्बल में भी है। प्रीएम्बल में पूरे संविधान का जो जिस्ट है, जो फिलॉसफी है, वो लिखा गया है। क्यों बनाया गया, उसकी ये फिलॉसफी होनी चाहिए, उसका ये मकसद होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली यू कैन से प्रीएम्बल इज एज यूजुअल द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एनी मोर क्वेश्चन?
सोर्सेज क्या, कंटेंट आप कह सकते हैं। प्रियम्बल शब्द पहले यूएसए के संविधान में एक जगह मिला था, ठीक है ना। प्रियम्बल वर्ड्स दैट हैज वाज मेंशन्ड इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सोर्सेज का क्या, आप उसके कहिए कि जो उसके मोस्ट ऑफ द मैटर्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं, दैट आर द पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इनडायरेक्टली यू कैन से द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द simple language objective resolution is converted into form of the preamble. Any more questions? और किसी का कोई क्वेश्चन? तो अब मैं इस क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्लास दैट विल स्टार्ट 8:45।